دوستوں، آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے خوبصورت افریقی ملک کی سیر پر جس کی خوبصورتی، ثقافت اور قدرتی مناظر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ چاہے یہاں کے حسین لوگ ہوں یا زرخیز زمین، مراکش دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتا ہے۔ اس ملک کا زیتون کا تیل دنیا کے بہترین تیلوں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ اعلیٰ معیار کی نمبر 1 کھجور بھی یہیں سے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ یہاں ایک حیرت انگیز اور منفرد شہر بھی واقع ہے جسے مکمل طور پر نیلے رنگ میں رنگا گیا ہے، یعنی دنیا کا واحد بلو کلر سٹی۔ اس کے علاوہ ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ مراکش کی آزادی کی تحریک میں پاکستان نے بھی اہم کردار ادا کیا، جو تاریخ کا ایک قابل فخر باب ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مراکش سے متعلق بہت سی دلچسپ، حیران کن اور معلوماتی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں تک زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ مراکش، جس کا سرکاری نام کنگڈم آف مراکش ہے، یہ ملک اپنی دلکش سرزمین اور قدرتی خوبصورتی کی وجہ سے یہاں کے باشندوں کے لیے اللہ رب العزت کا ایک عظیم تحفہ ہے۔ مراکش نہایت خوبصورت اور متنوع جغرافیائی خصوصیات کا حامل ملک ہے، جہاں سرسبز پہاڑ، خشک و سنگلاخ چٹانیں، سرسبز میدان، وسیع صحرائی علاقے، حسین وادیاں، گھنے جنگلات اور خوبصورت دریا سب کچھ موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بیمار انسان کو مراکش کی خوبصورتی دکھائی جائے تو وہ چند ہی دنوں میں صحتیاب ہو کر زندگی کی خوشیوں سے لطف اندوز ہونے لگتا ہے۔ یہ ملک نہ صرف قدرتی حسن سے مالا مال ہے، بلکہ یہاں کے لوگ بھی نہایت خوبصورت اور دلکشی سے بھرپور ہیں، جن کا حسن دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ مراکش نے 1955 میں فرانس سے آزادی حاصل کی اور یہ ملک شمالی افریقہ کے مغربی کنارے پر واقع ہے۔ آج مراکش کو افریقہ کے سب سے خوشحال مغربی ممالک میں شمار کیا جاتا ہے۔ مراکش کا کل رقبہ 4,40,300 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے، جس میں سے 0.056% حصہ یعنی تقریباً 250 مربع کلومیٹر پانی پر مشتمل ہے۔ یہ ملک مشرق میں الجزائر اور جنوب میں مغربی صحارا کے متنازع علاقے سے جڑا ہوا ہے، اور الجیریا کے ساتھ مراکش کی سب سے بڑی سرحد واقع ہے۔ مراکش کا دارالحکومت یہ رباط ہے، جسے عربی میں الرباط کہا جاتا ہے۔ یہ ملک کا 7واں سب سے بڑا اور ایک جدید ترین شہر ہے، جو بحرین اوقیانوس کے کنارے دریائے بوریگرے کے دہانے پر آباد ہے۔ رباط کا کل رقبہ 117 مربع کلومیٹر ہے، اور 2014 کی مردم شماری کے مطابق اس کی آبادی تقریباً 5,80,000 نفوس پر مشتمل ہے۔ یہ ایک میٹروپولیٹن شہر ہے جس کی بنیاد 12ویں صدی میں الموہدین نے رکھی، اور اسی دور میں یہ شہر خوب ترقی پذیر ہوا۔ الموہدین کے زوال کے بعد رباط تنزلی کا شکار ہوا اور 17ویں صدی میں باربری قزاقوں کی پناہ گاہ بن گیا۔ 1912 میں جب فرانس نے مراکش پر پروٹیکٹریٹ قائم کیا تو رباط کو اپنا انتظامی مرکز بنایا، اور آزادی کے بعد 1955 میں مراکش نے اسے اپنا دارالحکومت مقرر کیا۔ یہ شہر آج بھی سیاسی، سفارتی، تجارتی، ٹیکسٹائل، فوڈ پروسیسنگ اور دیگر صنعتوں کا اہم مرکز ہے۔ رباط کی تاریخی مدینہ کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا ہے، اور یہ مراکش کے 4 شاہی شہروں میں سے ایک ہے۔ یہاں تک سیاح ٹرین، بس، کار، ٹیکسی یا ہوائی جہاز کے ذریعے بآسانی پہنچ سکتے ہیں۔ CNN نے رباط کو دنیا کے اعلیٰ سفری مقامات میں دوسرا نمبر دیا تھا۔ مراکش کی کل آبادی تقریباً 3,79,84,655 افراد پر مشتمل ہے، جن میں 67% عرب، 31% بربر اور 2% سیراوی نسل سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل ہیں۔ اگر یہاں کے مذہب کی بات کی جائے تو 99.6% آبادی اسلام مذہب سے تعلق رکھتی ہے، جن میں سے 99.23% سنی مسلمان ہیں، جبکہ 0.45% آبادی شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ اسلامی اکثریت کے علاوہ یہاں 0.13% لوگ ایگنسٹک نظریات رکھتے ہیں، 0.10% بہائی مذہب کے پیروکار ہیں، 0.09% کرسچن ہیں، 0.01% چٹوس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور باقی 0.3% افراد دیگر اقلیتوں سے وابستہ ہیں۔
सुन्नी मुसलमानों की ज़बरदस्त अक्सरियत मराकश में इस्लाम के मजबूत वजूद और उसकी रूहानी बुनियादों को जाहिर करती है, जो न सिर्फ इस मुल्क की मजहबी शनाख्त है बल्कि मुसलमानों के लिए एक एजाज भी समझा जाता है। दोस्तों, मराकश की दो सरकारी ज़बानें हैं, अरबी और तुमज़ुगत, जिनमें से अरबी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती है, जबकि हुकूमती इदारों और सयाहों से बातचीत के लिए बेशतर अफराद को अंग्रेजी ज़बान पर भी उबूर हासिल है। मराकश का सबसे बड़ा और अहम शहर दीर अल-दीक है, जिसे दुनिया भर में कासाब्लांका के नाम से जाना जाता है। कासाब्लांका हस्पानवी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है सफ़ेद घर। ये शहर न सिर्फ मराकश का सबसे बड़ा शहरी मरकज है बल्कि एक अहम बंदरगाह भी है। यहाँ की आबादी तकरीबन 33,69,818 अफराद पर मुश्तमिल है और ये शहर शुमाली अफ्रीका की दूसरी और दुनिया की सबसे बड़ी मसनूई बंदरगाहों में शुमार होता है। कासाब्लांका रायल मराकश बहरिया का अहम मरकज होने के साथ साथ मालियाती लिहाज से भी अहमियत रखता है। 2022 के ग्लोबल फाइनेंशियल इंडेक्स में इस शहर ने आलमी सतह पर 54वां नंबर हासिल किया और दिल्ली, जकार्ता, मेक्सिको और इस्तांबुल जैसे बड़े शहरों को पीछे छोड़ दिया। यहाँ बहुत सी अमरीकी कंपनियों के हेडक्वार्टर्स भी मौजूद हैं। ज़राअत मराकश की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इसके अलावा मराकश माहीगिरी में भी एक अहम मकाम रखता है और यहाँ की मछली दुनिया भर में एक्सपोर्ट की जाती है। सियाहत भी मराकश की मईशत का मजबूत सुतून है और हर साल दुनिया भर से 2 करोड़ से जायद सयाह इस मुल्क की सैर के लिए आते हैं, जिसकी बदौलत ये अफ्रीका का सबसे बड़ा सियाहती मरकज भी बन चुका है। वक्त के लिहाज से मराकश पाकिस्तान से 4 घंटे और भारत से 4.5 घंटे पीछे है। अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मराकश का सफर करना चाहे तो इस्लामाबाद में वाक़े मराकश के सिफारत खाने से वीज़ा हासिल करना जरूरी है, क्योंकि मराकश पाकिस्तानियों को ऑन अराइवल वीज़ा की सहूलत फराहम नहीं करता। मराकश का कौमी परचम सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है, जिसके दरमियान में एक सब्ज़ 5 कोनों वाला सितारा बना हुआ है। इस परचम को 17 नवंबर 1915 को अपनाया गया, जहां सुर्ख रंग मराकश के बुजुर्गों के खून और बहादुरी की नुमाइंदगी करता है, जबकि 5 कोनों वाला सितारा इस्लाम के 5 सतूनों की अलामत है। मराकश की सालाना GDP 369.671 बिलियन डॉलर है और यहाँ के लोगों की फीकस आमदनी 9,808 अमरीकी डॉलर है, जो पाकिस्तानी करेंसी में तकरीबन 29,07,091 रुपए और भारतीय करेंसी में 8,14,962.90 रुपए बनती है। मराकश में इस्तेमाल होने वाली करेंसी मराकशी दिरहम है, जिसकी कीमत पाकिस्तानी रुपयों में 29.73 और भारतीय रुपयों में 8.33 के बराबर है। मुल्क भर में 37 हवाई अड्डे मौजूद हैं, जिनमें से 10 बैन अल-अक़वामी हैं और बाकी अंदरूनी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं। मराकश की कौमी एयरलाइन रॉयल एयर मरविक दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शुमार होती है, जिस पर हर साल करोड़ों अफराद सफ़र करते हैं। मराकश का खित्ता तकरीबन 3 लाख साल पहले पी लेवल तक दौर से आबाद चला आ रहा है। यहाँ पहली रियासत इदरीस अव्वल ने 788 में कायम की और बाद अज़ा मुख्तलिफ खुद मुख्तार खानदानों ने हुकूमत की, जिन्होंने मराकश को एक ताकतवर रियासत बनाया। 12वीं सदी में अल-मुवहिद और अल-मराबित खानदानों के तहत मराकश ने अजमत की बुलंदियों को छुआ। 15 और 16 सदी में पुर्तगाल और सल्तनत उस्मानिया जैसे बैरूनी खतरात ने मराकश को चैलेंज किया, लेकिन मरीनीड और सदी खानदानों ने मुअस्सिर मुज़ाहमत की और मराकश शुमाली अफ्रीका का वाहिद मुल्क था जो उस्मानी तसल्लुत से बचा रहा। दोस्तों, 1952 में जब मराकश फ्रांस के ज़ेरे असर था, इस वक्त मराकशी रहनुमा ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपने मुल्क की आज़ादी के लिए आवाज़ बुलंद करने की कोशिश की, मगर फ्रांस ने इसकी सख्त मुखालफत की, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में एक ही मुल्क से 2 मुख्तलिफ बयानिए पेश नहीं किए जा सकते थे। इसी इजलास में पाकिस्तान के पहले वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद थे, जिन्होंने न सिर्फ मराकशी रहनुमा की खिलकर हिमायत की बल्कि उन्हें पाकिस्तानी शहरियत देने की पेशकश भी की, ताकि वो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपनी बात दुनिया के सामने रख सके। रातों रात उन्हें पाकिस्तानी पासपोर्ट जारी किया गया और अगली सुबह वो पाकिस्तानी नशिस्त से मराकश की आज़ादी के हक में तकरीर करने में कामयाब हो गए। इसी जज्ब भाईचारा की बुनियाद पर आज भी मराकश के लोग पाकिस्तानियों को इज्जत व एहतराम की निगाह से देखते हैं।
मराकश का मशहूर शहर शफशान, जिसे बिल्लो सिटी भी कहा जाता है, अपनी नीले रंग की इमारत की वजह से दुनिया भर में मकबूल है। पहाड़ों के दामन में वाक़ई ये शहर निहायत खूबसूरत, साफ सुथरा और कुदरती हसन से मालामाल है। शहर की गलियां नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाई पर जाती है और यहां हर साल हजारों सयाह महज इसका दिलकश नीला मंजर देखने आते हैं। शफशान की कल आबादी तकरीबन 42,786 नफूस पर मुश्तमिल है और ये शहर अपनी सादगी, खूबसूरती और तारीखी अहमियत के बाइस मराकश के दिल की धड़कन माना जाता है। दोस्तों, मराकश के लोगों के मिजाज की बात की जाए तो ये अमूमी तौर पर खुश मिजाज, मेहमान नवाज और ओपन माइंड समझे जाते हैं। यहाँ रिवायती इस्लामी लिबास जैसे अबाह और निकाब पहनने वाले अफराद भी नजर आते हैं और मगरबी तर्ज जिंदगी अपनाने वाले लोग भी। खास तौर पर बड़े शहरों में ये इम्तिजाज ज्यादा नुमायां दिखाई देता है। कासाब्लांका, मराकश सिटी और रबात जैसे शहरों में जदीद तर्ज जिंदगी, नाइट लाइफ, शीशा कैफे और सोशल पार्टीज आम है, जहां मर्द और ख्वातीन आजादाना मील जौल रखते हैं और सयाहों को कशिश फराहम करते हैं। बाज मकामात पर नाइट क्लब्स और चिज यूरोपी तर्ज पर ढले हुए हैं, जहां माहौल खासा खुला और तफरीही होता है और शराब नोशी मखसूस मकामात पर कानूनी तौर पर दस्तयाब है। मराकश में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम निहायत जदीद और वसी है, जहां सड़कों, बस सर्विस, टैक्सी, ट्राम, मेट्रो और हाई स्पीड ट्रेन के जरिए शहरियों और सयाहों को बेहतरीन सहूलतें मुयस्सर हैं। और यूनिवर्सल ट्रेन जैसी जदीद सर्विस इसे अफ्रीका में टेक्नोलॉजी के एतबार से नुमायां बनाती है, जबकि रबात और कासाब्लांका में चलने वाली ट्राम सर्विस शहरियों को यूरोपी मेयार की सफरी सहूलत फराहम करती है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा और नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली नई और जबरदस्त वीडियो के साथ।